Just a second. कर रही हो रुको जरा अच्छा चेस Yes. So, good morning, students. So, we are going to start with the English. Am I audible to everyone? Yes, yes. Okay. क्या बात है, लग रहा है एकदम आज सब सो के आराम से उठ रहे हो. So lazy response. Fine. So we have complete with the bean neighborly. Then we done with the cherry tree also, right? Today we are going to see about the history of English drama. I think so. We should start with the history of English drama. Okay, just a second. Yes, Nelson. Just check your setting if you are not unable to unmute yourself. Okay, so we are going to start today with the history of English drama. Let me open the page. Okay.
नाउ दिस इज अ सेक्शन 4. इन दिस सेक्शन 4 आपको एक मिनट. In this section 4 you will get the like 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4. in that also A and B will going to come. So ये जो पूरा पार्ट है सेक्शन 4 का, ये ड्रामा का पार्ट है. ठीक है, जहाँ पे ईच क्वेश्चन कंटेन, मैं आपको क्लियरली बता दूँ यहाँ पे कि 4.1 जो आपका होता है ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए ऑन दी अकाउंट्स ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ 12 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है, कि यहाँ पे आपको जो 4.1 है लाइक द फिलिंग द ब्लैंक्स, मैथ द कॉलम, ऑड मैन आउट, ऐसे आएगा. और 4.2, 4.3 एंड 4.4 ईच क्वेश्चन कंटेन द 2 मार्क्स, जिसमें से बोर्ड एग्जाम्स में आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे फ्रॉम ईच एंड ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स. ठीक है, let we start with the drama, that is history of English drama. Okay, so the dramatic, यहाँ पे how dramatic you are in your response when a friend exaggerate or the overreact. It means you are correctly using the adjective forms of the word drama. So drama is a performance. So drama is a performance which essential loud, exaggerate and larger than life. It is audio and visual medium. The audience sitting around in front of close to or in the last row. To or in the last row of the theater should be able to hear and see the actor on stage. For example, a stage whisper is far louder than a whisper in real life. This would be an example of willing suspension of disbelief. It can be defined as a willingness to accept the unreal. It may also mean sacrifice of realism and logic for the sake of enjoyment. The term was coined by the poet and aesthetic philosopher Samuel D. Coleridge. The term often applies to the fictional work of the action, comedy, fantasy, or horror genre. It refers to the willingness of the audience to overlook the limitation of a medium. Drama is a medium of expression whereby performers express themselves artistically. So the performance is based on script which is in the form of poetry, is language expressed in rhyme and meter. So drama is the specific made of fiction representing the performance. A play, opera, and the ballet are performed in a theater, on radio or on television. So first we are going to see छोटा सा what the general meaning of drama. Let me start with you. Anyone can explain me what is the drama? ये सब छोड़ के सिर्फ एक जनरल मीनिंग आई वांट टू नो अबाउट व्हाट इज ड्रामा. यस, कोई बोलेगा अपने आप को? अनम्यूट एनीवन योरसेल्फ. Ma'am, यस, हाँ मरिया बोलो. ma'am, it is a script which is performed by some people.
अगर लेकिन पहले के टाइम पे स्क्रिप्ट नहीं होती थी, राइट? वी टॉक अबाउट कुछ सेंचुरीज पहले तो भी ड्रामाज होते थे। हम्म तो वो क्या होते थे? एक पर्टिकुलर कोई भी सीन या समथिंग, कोई मैसेज कन्वे करना है या फिर सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से। हम्म तो पहले वही चीजें होती थी। पहले स्क्रिप्ट नहीं होती थी लिखने के लिए। सबसे पहले वहाँ पे सिर्फ एक एक्सपीरियंस होता था, एक ऑब्जर्वेशन होता था। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि बहुत सारे जो रेवोल्यूशंस हुए हैं, बहुत सारे जो रिवॉल्ट्स हुए हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, उसका एक अहम पार्ट, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द ड्रामा हैज़ बीन प्लेड। ड्रामा ने बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया हुआ है कि हमें आज जो इतने फ्रीडम स्ट्रगलर्स से, जहाँ पे उनको बैन कर दिया गया था चीज़ों के लिए कि आप न्यूज़पेपर नहीं लिख सकते, आप राइटअप नहीं लिख सकते, आपकी मैगजीन्स नहीं निकल सकती, तो उनके पास और क्या था जरिया? यही सारी चीज़ें होती थी जहाँ पे आप पोएट से आप कन्वे कर सको, आप उनसे बातें कर सको, मतलब बातें सिर्फ बातें ही होती थी। बट वहाँ पे उठा के जैसे ही वो अपनी चीज़ें करते थे, पुलिस उनको उठा के, द ब्रिटिशर्स उनको उठा के जेल में डाल देती थी। बट हम बात करें तो बिफोर ब्रिटिशर ऑल्सो, इस टाइम पे तो काफ़ी हम एडवांस हो चुके थे कि पेन होती थी, बुक होती थी, राइटिंग वर्क्स होते थे। जिस टाइम पे पेन बुक भी नहीं होती थी ज़्यादा, हर कोई उसको नहीं ले पाता था, तब कैसे होती थी ये सारी चीज़ें? और ड्रामा का कंसेप्ट उससे भी पहले आया हुआ है। आप देखो ट्राइबल पीपल में, यहाँ पे, यस, And it's like based on stories and like dramas are placed by in which we play stories. कभी कविश, मुझे आपकी आवाज़ ना ठीक से नहीं आ रही है, गूंज रही है। बोलो, ट्राई करो वापस से। हम जैसे स्टोरीज होती थी ना पहले के टाइम पे, वो स्टोरीज को कन्वे करते थे ड्रामा की स्टाइल में। हाँ, जैसे अपनी दादी दादा और नानी नाना मतलब कहानियाँ सुनाते थे, है ना, वो यस चीज़ लाइक। आज भी तो वही चीज़ें है ना, महाभारत ले लो, रामायण ले लो, आज भी देखो तो बहुत जगह पे रामायण वाला चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं अरे रामायण लगा, ये एक्ट लगा हुआ है, वो हम चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ की जो एक सोच होती थी हमारी इंडियंस की अलग होती थी, और जो अलग कंट्रीज़ के थे उनके अलग, बट द सिचुएशन वाज ऑलमोस्ट सेम होता था। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन दी हुई है। हम कहीं पे भी, किसी भी लोग जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, थोड़ा सा इनका कुछ भी ओवर चीज़ें होती थी, हम क्या बोलते थे, ओ कितना ओवर कर रहा है, कितना नाटक है यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, ठीक है। तो डैट इज़ दिन ओवर एक्साग्रेटेड, ओवर रिएक्टेड हो जाते थे हम उस चीज़ के लिए लेके। तो उसी वर्ड को बोला गया था दी ड्रामा। किसी भी एक चीज़ को प्रॉपरली डिफाइन करना, किसी भी एक चीज़ को खींचना, हम्म, और उसको बारीकी से एक्सप्लेन करना, वही चीज़ें, ये ड्रामा ऑडियो और विजुअल दोनों ही होता है। और ये एक बड़े में दिखाई, तो यहाँ पे हम यही चीज़ बोलेंगे कि सबसे पहले ये एक पर्दों पे होता था, एरियाज में होती थी, जैसे एक जगह पे लेके, देन उसके बाद ये धीरे धीरे थिएटर्स में आने लगी, जो लोग आराम से बैठ के देखने लगे। फिर यहाँ पे दिया भी हुआ है कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ठीक है। सो इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि एक्सेप्ट दी अनरियल, आपके पास ड्रामा है, स्टोरी है, बट इट कैन बी अ फिक्शन, ठीक है। ये एक ये एक रियल नहीं है, ठीक है, दिस इज एन अनरियल भी हो सकता है। कुछ स्टोरी है जो रियल बेस्ड पे कंसेप्ट होती है उनकी, लेकिन कुछ स्टोरीज होती है जो अनरियल भी होता है। सो जैसे कि सेक्रीफाइस हो गया, रियलिज्म हो गई इस चीज़ को लेके, एस्थेटिक, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे गई। सम कुछ स्टोरीज होती है जो फिक्शनल वर्क से होती है, जो जैसे कि एक अलग ही, जैसे हम रामायण पढ़ते हैं तो किस तरीके से उनका वाहन है, वो रावण जिस वाहन पे बैठता है वो उड़ता है,
फिर एक तीर से 50 तीर साथ में निकलते हैं, ठीक है। एक ह्यूमन बीइंग जो सबसे ज़्यादा ऊंचा लंबा होता है। तो ये सारी एक फिक्शन की स्टोरीज होती है, जहाँ पे आप कॉमेडी भी देखते हो, फैंटेसी और हॉरर जनरल भी आपको वो फीलिंग आती है। तो स्पेशली अगर ड्रामा बोले तो ये एक एक्सप्रेशन का मीडियम है, जहाँ पे आप अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करते हो, और वो एक्सप्रेस आपके जैसे से धीरे धीरे हम जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते गए, वो एक रिटन फॉर्म में आ गया, दैट इज इन द स्क्रिप्ट राइटिंग, ठीक है, द फॉर्म ऑफ डायलॉग। सो इसको अब हम ड्रामा को रिटन एंड नरेटिव फॉर्म दोनों ले सकते हैं। बीच बीच में जब हम इसको परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो वी विल गेट दी पोएम ऑल्सो, ठीक है। ये एक पोएटिक फॉर्म में आ जाती है, जो राइम एंड मीटर्स दोनों को लिया जाता है। सो ड्रामा इज इन स्पेसिफिक मेड ऑफ द फिक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड परफॉर्मेंस के साथ में रहती है। ये साथ ही साथ में एक ओपेरा, माइम और बैलेट परफॉर्म करता है। इट्स कम टू दी सॉरी इट्स कम ऑन दी रेडियो एंड टेलीविजन पे आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल कम टू दी व्हाट इज एग्जैक्टली ड्रामा। बट इससे पहले हम उस चीज़ के लिए जाएं, आई नीड यू टू रीड दिस वन। ऊपर का जो पैरा है ना, एक बार आप रीड करो प्लीज़। ओके, सो यहाँ पे जेनिल ने आंसर दिया है कुछ, that dramas were the modified forward in many different types thing, जैसे पपेट शो, मिमीज और कालीबस। हाँ, ये सारी चीज़ें उसी का पार्ट है, ठीक है। परफॉर्म एनी शो, ओके। सो देखते हैं व्हाट इज ड्रामा का कंसेप्ट। ड्रामा इज कंपोजिशन in verse or prose to be act on the stage, in which a story is related by mean of dialogue and action. Is represent with the accompanying gesture, costume and scenery as in real life, ठीक है। हम शॉर्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का भी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ड्रामा इज अ कंपोजिशन डिजाइन for performance in the theatre, in which actors take the roles of the character, perform the indicated action and utter the written dialogue। तो ये भी हम दोनों फॉर्म देखेंगे। A glossary of the literal term by the M.H. Abraham, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या देखा है, नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेकिंग दिस सेंटेंस, ठीक है, जो नंबर 1 पे दिया हुआ है। ड्रामा इज एन कंपोजिशन इन वर्स ऑफ प्रोज, एक वर्स में होता है या तो एक प्रोस में होती है पोयम, और एक या तो लाइन बाय लाइन होती है। टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज, ये जो चीज़ मिलती है वो आपको स्टेज पे एक्ट करना होता है। इन विच अ स्टोरी, जो एक्ट आपकी होती है उसमें एक स्टोरी होती है, एक डायलॉग होता है और एक एक्शन होती है, ठीक है। दिस जस्ट लुक लाइक द मूवी, ठीक है ना। किस तरीके से आप कोई चीज़ यहाँ पे एक मूवी बना रहे हैं, यहाँ पे जो डायरेक्टर होता है वो आपको बोलता है यस एक्शन कट, वो वाली चीज़ है।
तो यहाँ पे एक स्टोरी होती है, एक डायलॉग होता है, एक्शन होता है, परफॉर्मर होता है, ठीक है। एंड अकम्पनी द गेस्चर, जिस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से उसके गेस्चर्स होते हैं वो, एंड कैरेक्टर के हिसाब से उसका कॉस्ट्यूम होता है, एंड द सीन एज इन द रियल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रावण का अगर वेश देखें या उसका कॉस्ट्यूम देखें, उसके डायलॉग्स देखें, वो हमारे दिमाग में आज के टाइम पे फिट हो गया है। एंड वी नो अबाउट कि अगर हम किसी को भी पूछें कि राम कैसे दिखते हैं, रावण कैसे दिखते हैं, सीता कैसे दिखती थी, तो आप सबको दिमाग में यू हैव द पिक्चर, यू हैव द पिक्चर इन योर इमेजिनरी माइंड कि येस कि इसके कॉस्ट्यूम्स ऐसे होने चाहिए, ये होने चाहिए, वो होने चाहिए। सो यहाँ पे अगर उस कॉस्ट्यूम को पहना के अगर किसी को लेके आते, वो डायलॉग देते, इसका मतलब क्या हो गया, द परफॉर्मर वॉज इन टोटली एकदम इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि हम उनको तो भूल ही नहीं पाते, है ना। तो दैट इज द वन ऑफ थिंग, और ऑक्सफोर्ड का भी यही सेम एक्सप्लेनेशन है। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ द ड्रामा हम देखेंगे। काफी बड़ा है चैप्टर। एक मिनट, थोड़ा आगे आगे हम, हाँ। नाउ द एलिमेंट ऑफ ड्रामा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एक मूवी की, सिर्फ अपने दिमाग में एक मूवी प्रोडक्शन, एक फिल्म प्रोडक्शन का आप एक दिमाग में ले लो, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ ड्रामा यहाँ पे है फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट, ठीक है। सेकंड है कैरेक्टराइजेशन, थर्ड है डायलॉग, फोर्थ है सेटिंग, देन स्टेज डायरेक्शन, सिक्स्थ है कॉन्फ्लिक्ट, देन सेवेंथ है थीम, ठीक है। ये सारी चीज़ों से एक ड्रामा बनता है। दिस आर द थिंग्स जहाँ पे आप एक ड्रामा को बनाते हो, यू मेक इट। सो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ होती है, उसके अंदर आपके पास प्लॉट्स होने चाहिए, यू शुड हैव द कैरेक्टर, कैरेक्टर को बोलने के लिए ड्रामा होनी चाहिए, कैरेक्टर को परफॉर्म करने के लिए वहाँ पे स्टेज डायरेक्शंस होने चाहिए, सेटिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके लिए अगर यहाँ पे 3 एंट्री पॉइंट्स होती है एक स्टेज पे, तो कब कहाँ किसको आना है, दिस वॉज मेंशन, ठीक है। तो वो चीज़ होनी चाहिए। देन कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमको पता होना चाहिए कि किसके बाद कब कौन सी चीज़ें बैक टू बैक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं है लड़ाई करने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स ये होती है हाउ यू रिमेंबर द पॉइंट्स और द डायलॉग्स इन योर माइंड एंड हाउ यू आर यूजिंग द फुल परफॉर्मेंस फॉर द स्टेज, ठीक है। और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ड्रामा का थीम क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ द ड्रामा, क्योंकि जब तक थीम नहीं होगा ड्रामा के एलिमेंट्स बनेंगे ही नहीं। सो दिस इज अ 7 मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द ड्रामास के, ठीक है। इसकी क्लोज 4 रिलेटेड चीज़ें हैं, आपने ये सब तो चीज़ें कर दी, लेकिन यहाँ पे सीन तो बतानी पड़ेगी। सीन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि जहाँ पे क्लाइमेटिकल कंडीशंस होती है, बारिश आना, बिजली कड़कना, ये सारी चीज़ें आपको फिर कहीं पे आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, दिस इज ऑल दी सीन होता है। बैकड्रॉप, फिर ये कैरेक्टर आ रहा है, ये डायलॉग बोल रहा है, एक पार्ट में एक सीन में आपको क्या दिखाना है विद दी बैकग्राउंड पॉइंट। बैकग्राउंड आपका चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ में आपका आगे की जो कैरेक्टर्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं,
इतने सीन के लिए ये बैकग्राउंड ये परफेक्ट है बस। तो ये चीज़ होती है द फोकस ऑफ द ऑडियंस। डेफिनेटली यहाँ पे जब आप एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा सिलेक्ट करते हो, ठीक है, तो सब सोच समझ के करते हो। डेफिनेटली आपकी हार्ड वर्किंग होती है एंड द ऑडियंस शुड बी अट्रैक्ट विद द डायलॉग्स, अट्रैक्ट विद द एक्ट, अट्रैक्ट विद द फुल ऑफ द सीन स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा फोकस जो होता है वो ऑडियंस का होता है। देन द कैरेक्टर, आपने कितने भी अच्छे स्टेज पूरे सजाए हो, कितने बैकग्राउंड म्यूजिक किया, लेकिन जब तक पूरा जो मेन है ड्रामा में द रोल ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर के अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, जैसे फॉर एग्जांपल रावण का जो रोल होता है, कड़क आवाज में होती है, एकदम एकदम चिल्ला के बोलना होता है, ही हैव वेरी फियर्स इन द लाउड डायलॉग्स, इट कैनॉट बी लाइक देन मिमी टाइप के वो नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे कैरेक्टर जो होता है अगर वो तरीके से बोल रहा है तभी ही गेट द सक्सेस इन हिज ड्रामा, ठीक है। सो द फोकस ऑफ द कैरेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने डायलॉग्स और अपनी चीज़ों पे बहुत वर्कआउट करे चीज़ को लेके, और उसकी डायलॉग है जो पिचिंग है दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नाउ द फोकस ऑफ द एक्टर, हमने बात किया कैरेक्टर का, ठीक है, कि किस तरीके से कैरेक्टर में डूब के उसे करना होता है। अगर और कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है कि हमने वो कपड़े पहन लिए हैं और हमने अपने आप को एक मिरर में देखते हैं, तो समटाइम्स वी एक्ट इन दैट वे ओनली। तो एक्टर ऐसा होना चाहिए कि कैरेक्टर में पूरी तरीके से चलक घुस जाए। इट कैनॉट बी लाइक कि नहीं बस एक एक्टिंग तो है, कर लेते हैं, हो जाएगा, नहीं। द एक्टर शुड बी इन एक्टिंग बट इन कैरेक्टर। आप यूं ही जनरली और नॉर्मल नहीं डायलॉग बाजी कर सकते हो वहाँ पे। किसका ये बिल आया है? ठीक है। ओके, सो दिस इज दी, हमने क्या देखा, we have seen the elements of drama and the objectives, but before I go ahead मैं चाहती हूँ कि एक बार ना आप, क्योंकि एग्जाम्स में ये आता है for the definition के लिए कि what is drama, just take a second and read this one, what is an drama, जल्दी से, just giving a minute. मैम Yes. there are some dramas in which they sing and convey the message of the story. सॉरी डियर, एक्चुअली आपके वॉइस जो है ना वो थोड़ी सी गो रही है, कैन यू रिपीट वंस अगेन। मैम जैसे कुछ डांस करते हैं या कुछ गाना गाकर कन्वे करते हैं ना स्टोरीज को, वो भी हाँ, एक ड्रामा करते हैं। वो भी एक ड्रामा का ही पार्ट होता है। पता है आपको कि सबसे पहले जो रामायण होता था ना, वो पहले सॉन्ग के ही फॉर्म में हुआ करता था, जैसे कि वहाँ पे कैरेक्टर्स भी होती थी, वहाँ पे अपने ये सारे, जस्ट सेकेंड, ये कैरेक्टर होता था, प्लॉट होता था, स्टेज डायरेक्शन होता थी, कॉन्फ्लिक्ट थीम, डायलॉग सब होती थी, लेकिन बट डायलॉग यहाँ पे कैसे होता था
कि एकदम मतलब एक मिनट, हाँ डायलॉग यहाँ पे कैसे होते थे कि एकदम लाइक पोएटिक फॉर्म में होता था, ठीक है। मतलब हमेशा वो जरूरी नहीं थी कि डायलॉग मतलब मुंह से बोलते थे जैसे हम मूवीज में देख रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं। पहले वाले फॉर्म में पोएट्स में ही होती थी, पहले वाले फॉर्म में सॉन्ग में ही होती थी। तो दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ ड्रामा ओनली, ठीक है। बाद में धीरे धीरे करके ये सारी चीजें अलग उसको टर्म दिया गया, ओके। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि ड्रामा होना क्यों चाहिए, ज़रूरी क्यों है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि after studying this unit you will be able to understand, to identify drama as a genre of literature। ये लिटरेचर की बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है ड्रामा की, ठीक है। क्योंकि अगर ड्रामा नहीं तो आप मॉरल वैल्यूज़ नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे, आप चीज़ें जल्दी नहीं समझ पाओगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द जेनर ऑफ लिटरेचर, देन लर्न द डेफिनेशन ऑफ द ड्रामा। एग्जैक्टली अब अभी आप लोग कैसे अलग अलग आंसर्स दे पा रहे हो, है ना। आप लोग की अलग अलग थॉट हो गई है ड्रामा को लेके, तो ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे कि ड्रामा एग्जैक्टली है क्या। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द ड्रामा एंड अदर फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ड्रामा और दूसरे भी जो लिटरेचर का पार्ट है आप उसमें डिफ्रेंशिएट दिखा पाओगे, कि ड्रामा ये होता है, लिटरेचर्स में राइटिंग वर्क भी होती है, पोइट्री सेक्शंस भी होती है बहुत सारे, तो आप डिफ्रेंशिएट बहुत इजीली बता पाओगे कि ड्रामा भाई स्टेज पे किया जाता है और ये सारी चीज़ें एक राइटिंग वर्क है। एक्सप्लेन द बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्रामा। उसके कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए। अगर आपके पास चलो नहीं साउंड है नहीं कुछ है, एटलीस्ट एक कैरेक्टर चाहिए, एक स्क्रिप्ट चाहिए आपको, स्टेज भी नहीं चलो ऐसे ही नॉर्मल ज़मीन पे भी कर लेंगे, एक थीम चाहिए आपको, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और एक प्लॉट चाहिए आपको। प्लॉट तो हम चलो वही नीचे वाला बोल रहे हैं। सो बेसिक चीज़ें एलिमेंट ऑफ द ड्रामा क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द टाइप्स ऑफ ड्रामा। तो यहाँ पे मेन जो टाइप्स ऑफ ड्रामा है वो 3 में है, ठीक है। पहला है ट्रेजेडी, कॉमेडी और ट्रेजेडी कॉमेडी, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे ट्रेजेडी हो गई और ट्रेजिक कॉमेडी अलग हो गई, ठीक है। नाउ कॉमेडी में नॉर्मल रोमांटिक कॉमेडी है, सेंटिमेंटल कॉमेडी, देन यू हैव द क्लासिकल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, ठीक है। दिस आर दी 5 टाइप्स ऑफ कॉमेडीज। ओके इसमें आपको कुछ अभी तक है ये पेज पे, इन दिस पेज डू यू हैव एनी डाउट? Are you clear with this page, everyone? Ma'am. Yes, ma'am. Fine, chalo. Yes, miss. Now we'll go ahead. See, this is the elements को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। स्क्रीन इज नॉट गेटिंग द वर्टिकल। चलो ठीक है ऐसे करती हूँ मैं। सो यहाँ पे प्लॉट, कैरेक्टर, कैरेक्टराइजेशन, डायलॉग, स्टेज डायरेक्शंस, देन कॉन्फ्लिक्ट और थीम हम देखते हैं, ठीक है। सो द सीरीज ऑफ द इवेंट ऑकरिंग इन अ प्ले आता है, और इसका मतलब होता है प्लान, स्कीम और पैटर्न पे तैयार होती है,
और ये बिगनिंग, मिडल और उसके एंड तीनों पार्ट्स होते हैं। कैरेक्टर इसका जो है वो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ड्रामा का। प्रोटोगोनिस्ट मतलब जैसे मैंने बताया कि जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला होता है, इट नोन एज दी प्रोटोगोनिस्ट, इस प्ले में जो एंटर कर रहे हैं। देन अदर कैरेक्टर आर द मेजर, माइनर, और आपको उस कैरेक्टर के आगे पीछे और बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे, छोटे मोटे कैरेक्टर्स होते हैं। देन कुछ डायनामिक, फ्लैट्स एंड राउंड, ये कैरेक्टर्स। नेक्स्ट कैरेक्टराइजेशन क्या करेंगे हम यहाँ पे कि हम रिवील करते हैं पर्टिकुलर मेन हीरो और मेन विलन, उस चीज़ों को लेके, ठीक है। यहाँ पे कैरेक्टराइजेशन हम क्यों करते हैं, बिकॉज वी आर पुटिंग द कनेक्शंस बिटवीन टू दिस वन की टू गेन द इंसाइट इनटू देयर पर्सनालिटी एंड टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन विद देम, ठीक है। डायलॉग होते हैं, इसमें दो स्पीकर्स होते हैं, एक बोलने वाला एक सुनने वाला, कभी कभी दोनों बोलने वाले होते हैं, ठीक है। और एक होता है मोनोलॉग, जो हम अपने आप से बात करते हैं लेकिन सुनते सभी है। एक सेकंड, एक, देखिए, एक मिनट। यस, सो यहाँ पे मोनोलॉग का मतलब वही होता है कि जहाँ पे आप अपने आप को ही बात करते हो कि क्या मैंने ऐसे किया, ऐसे कैसे कर सकता है, ये नहीं वो नहीं। मतलब आप अगर कभी भी स्टेज का परफॉर्म देखो, उसमें भी आपको वो चीज़ें दिखेगी। देन दिस सैलिक्यू, दैट इज द कैरेक्टर होता है जो थॉट प्रोसेस एक्सप्रेस करता है, अपनी सोच को वो सबके सामने रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट रिवील द नेचर ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे इस कैरेक्टराइजेशन को अगर हम देखेंगे तो, एक मिनट, हाँ, डायलॉग को, तो डायलॉग क्या करता है, रिवील करता है कैरेक्टर को, और उसके बारे में हमें और जानने के लिए हेल्प होती है कि ये अगर डायलॉग नहीं बोलेगा तो पता कैसे चलेगा। सबको वही सिंहासन, सबको वैसे ही कॉस्ट्यूम, सबको वैसे ही मुकुट ताज पहना दिया जाएगा, एंड लेडीज तो डेफिनेटली हम नहीं पहचान पाते हैं। तो डायलॉग से पता चलता है कि यस दिस इज द कैरेक्टर। नेक्स्ट है स्टेज डायरेक्शन। सो यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए आपको स्टेज की ज़रूरत पड़ती है, बट ओनली दिए, एक मिनट, फिर यहाँ पे लेकिन यहाँ पे सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए हमें स्टेज की नहीं, बल्कि द एक्टर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट द स्टोरिंग अलॉन्ग विद द बैकग्राउंड की चीज़ें, फॉर एग्जांपल लाइटनिंग हो गई आपकी, म्यूज़िक हो गया, कॉस्ट्यूम्स हो गए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट करती है, तभी से उस चीज़ को प्रॉपर एक लुक आता है। देन स्टेज डायरेक्शन आर गाइडलाइन सजेशन गिवन बाय द ड्रामेटिस्ट। ये भी है जहाँ पे स्टेज डायरेक्शंस होते हैं, जहाँ पे गिवन बाय द ड्रामेटिस्ट आपको देते हैं, ठीक है। देन इट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट, ये है एसेंस ऑफ ड्रामा, ठीक है। एंड ये क्या करता है, ये एनलाइट करता है लाइफ, ग्रैंड डिग्निटी एंड वर्थ टू ह्यूमन लाइफ, कि आपको क्या इस ड्रामा से लेसन क्या मिला आपको, what you are learning from this drama, तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट देती है। थीम, द मेन आइडिया और पॉइंट ऑफ अ प्ले, स्टेटस एज इन जनरलाइजेशन, ठीक है। तो थीम का मतलब क्या हो गया, आप यहाँ पे बैठे हो, आप चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको मालूम तो जो एक मूवी में किस तरीके से आपको एक नाम दिया जाता है ना, एक मूवी का नाम होता है, तो वी नो अबाउट ये मूवी का नाम थीम के ही ऊपर बेस पे दी जाती है, बिकॉज जब तक आपका थीम क्लियर नहीं होगा, यू कांट गिव यू नेम, एंड द थीम इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। सो बाय टेकिंग अ मिनट आप इसको फटाफट एक बार देख लो।
Yes. Okay. Tapshi Pawar, na? Okay. Tapshi is asking, what is solitude? Okay. Just a second. यहाँ पे आप देखोगे सॉलिक्यू आपको डायलॉग में दिख रहा है, तो सॉलिक्यू का मतलब ऑलरेडी दिया हुआ है, द कैरेक्टर थॉट प्रोसेस एक्सप्रेस लाउड। जैसे कि यहाँ पे एक खड़े हैं, फॉर एग्जांपल हमने सब जगह रावण का ही लिया है, यहाँ पे खड़े हुए हैं रावण, उनको एक डायलॉग दिया गया है, ही वॉज द पर्सन टू एक्सप्रेस एज लाउड एज, कि लोग उसको सुन के एकदम वो करें। तो यहाँ पे एक स्पीकर है, द सॉलिक्यू का मतलब ही वही दिया हुआ है कि द स्पीकर हैव टू स्पीक देयर डायलॉग्स इन अ लाउड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक बार देख लो फटाफट इसको। मैम। हाँ, एक मिनट, यश क्या पूछ रहे हैं? मैम एक अ, डाउट है। हाँ, एक मिनट बेटा रुको, पहले यश ने मैसेज किया है। हाँ, यश ये 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, व्हाट इज ड्रामा। सो आपको जितना दिया गया है पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, यू कैन राइट इन शॉर्ट ऑल्सो। ठीक है, डेफिनेशन वैसे मोस्टली इसमें से ऑब्जेक्टिव्स ही आते हैं, लाइक फिलिंग द ब्लैंक्स, मैथ द कॉलम, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट वाले हमेशा आइदर इन 11th और 12th में आपको जो ये पार्ट रहेगा वो यही बेसिस पे आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप्स में। बट इसमें ये आ सकता है कि डिफाइंड ड्रामा, डिफाइंड सेटिंग, ये सारी चीज़ें। बट आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, रेलिवेंट लिखना है, जितना दिया है उतना ही लिखना है आपको। ठीक है। Okay, हाँ ma'am. हाँ, अभी किसकी क्वेरी थी? मैम क्या, कौन बोल रहा है? मैम आपने एक चैप्टर और एक पोएम सिखाया तो उसके नोट्स कैसे बनाने हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप, फर्स्ट चैप्टर की? यस मैम, एक चैप्टर आपने सिखाया और एक पोएम सिखाया ना, चेरी ट्री। हाँ हाँ हाँ, उसमें टेक्सचुअल है ना, तो वो टेक्सचुअल को आप ये आप नॉलेज की आप ये लेके कर सकते हो डाइजेस्ट, उसमें से आप करना है, क्योंकि मोस्टली आपको 12th स्टैंडर्ड का बता दूं कि 12th स्टैंडर्ड की जो चीज़ें हैं और 11th की जो चीज़ें हैं, वो सारी उसी में से आती है, बाहर से कहीं नहीं आता है। हाँ, जो बुक्स है मैं आपको एक फ़ोटो भेज दूंगी कि आपको बुक कौन सी लेनी है, तो आप उसको ही प्रीफर करिए। ठीक है ना? तो वो सारा मतलब नोटबुक में लिखते जाना है? हाँ हाँ, आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो डेट इज़ बेटर ना। आप जो चीज़ें आप कर रहे हो अपने तरीके से, स्पेशली फॉर दी पोएम हो गया, राइटिंग स्किल्स हो गई, या आप करते जाइए उसको, गो विद द कंटिन्यूशन विद द थिंग्स, जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जा रहा है, यू गो विद द थिंग्स, है ना? ओके मैम। अच्छा, अभी क्या करते हैं हम, वी विल जस्ट कंटिन्यू। नाउ विल कम हियर दी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। सो हम यहाँ पे इंग्लिश ड्रामा को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन हम देंगे कि ड्रामा हैज़ इट ओरिजिन इन फोक थिएटर, सो वी देयरफॉर कैनॉट कंसीडर ड्रामा merely अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ड्रामा एक लिटरेचर का पार्ट है। एक मिनट।
सो यहाँ पे हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ड्रामा. ड्रामा हैज़ इट ओरिजिन इन फोक थिएटर्स. ठीक है. We therefore cannot consider the drama merely as a part of literature. हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये एक फोक थिएटर का मतलब मैं बता रही हूँ, जैसे आप पहले के टाइम पे भरतनाट्यम ये सारी चीज़ें आप देखते थे एक डांस फॉर्म में. ठीक है. तो यहाँ पे उसको एक फोक थिएटर, बट यहाँ पे फिर भी उसको ड्रामा का एक पार्ट नहीं दिया गया, जबकि वो पार्ट था उसका उस टाइम. सो वर्ड्स आर द मीडियम ऑफ लिटरेचर. उनको लगने लगा कि धीरे धीरे ड्रामा जो है ये एक सिर्फ पोइटिक या उस चीज़ में नहीं, इसमें वर्ड्स होना ज़रूरी है, डायलॉग होना ज़रूरी है इस लिटरेचर्स को. ठीक है. सो वर्ड्स आर द मीडियम ऑफ द लिटरेचर. यहाँ पे वर्ड्स को उन्होंने कन्वे किया एंड यहाँ पे चीज़ें एक आर्ट में फॉर्म हो गई. बट ड्रामा इज इन द मल्टीपल आर्ट यूजिंग वर्ड. सिनेफिक इफेक्ट होती चालू कर दिया उसमें, म्यूजिक हो गया, गेस्चर हो गया एक्टर्स के. ऑफ द ऑर्गन, हाँ, देन मल्टीपल यूजिंग वर्ड्स हो गया, सीन इफेक्ट्स हो गए उसमें, म्यूजिक हो गई, गेस्चर्स हो गए ऑफ द एक्टर्स एंड द ऑर्गेनाइजिंग टैलेंट. ठीक है. ऑफ द प्रोड्यूसर. द ड्रामेटिस्ट मस्ट हैव द प्लेयर अ स्टेज एंड एन एक मिनट. सो यहाँ पे अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक आप मूवी देख रहे हो, द मूवी इज जस्ट गोइंग एज सिंपल, अपने ही एक रिदम में जा रहा है, अपने ही एक रिदम में जा रहा है. क्या आपको इंटरेस्ट आएगी? यू आर रिव्यूइंग द मूवी ना, कि आपको मूवी अच्छी लगी, क्यों लगी. तो ये सारी जो चीज़ें होती है आप एक मिनट, तो ये सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती कि मूवी में एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है. उसका बैकग्राउंड हो गई, उसके सीक्वेंस हो गए, देन देर आर मेनी ऑफ द थिंग्स. ठीक है. सो the beginning of the drama in England are obscure. There is an evidence to believe that when the Romans were in England, they established the vast amphitheater. Amphitheater का मतलब होता है जहाँ पे एक ज़्यादा बहुत बड़ी तो नहीं होती, बट वहाँ पे एक ऐसे थिएटर बनाई गई जहाँ पे वो प्ले कर सके. जहाँ, और पहला आपको बता दूँ मैं कि पहला जो ड्रामा प्ले हुआ था वो रोमन से ही स्टार्ट हुई थी. सो वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया. बट when the Roman departed their theatre with them, then there were minstrel. People enjoy their performance gradually by the 10th century and ritual of the play. मैंने आपको पहले ही बोला कि प्ले में मतलब सिर्फ एक ही चीज़ें नहीं होती कि जहाँ आपको एंटरटेन मिले. प्ले में आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती है जहाँ पे आपको करंट सिचुएशन सोसाइटी का पता चलता है. तो ये सारी चीज़ें उसमें पता चल रही थी. सो इट गेट दी एक्सटेंडेड टू द रूडिमेंट ऑफ द प्ले. धीरे धीरे ये प्ले पता कर रहा था कि कुछ अपने राइवल्स भी होते हैं. ठीक है. एक लड़ने वाले लोग होते हैं. तो वहाँ पे भी उस चीज़ का असर लगा कि नहीं, हमारे खिलाफ में बोलना चालू कर रहे हैं अभी विद द थ्रू ऑफ दिस ड्रामा एंड ये सारी एक्टिविटीज़ से. सो बिटवीन द 13th and 14th century ड्रामा स्टार्टेड हैविंग थीम. तब यहाँ पे ड्रामा को एक थीम मिलना स्टार्ट हो गया विच सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन. जो रिलीजन से कांटेक्ट में नहीं होता था, लेकिन पहले के टाइम पे जो अगर आप देखोगे तो वो रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बना के लोगों के सामने प्रेजेंट कर देते. द वर्ड themselves were spoken in English, a longer dramatic script came into use. यहाँ पे उन्होंने इंग्लिश का यूज़ किया ड्रामा के लिए एंड दे आर कॉल्ड एज द मिरेकल प्ले. उसको उन्होंने नाम दिया, डैट इज़ द मिरेकल प्ले.
उसके बाद में ये रिलीजियस ड्रामा मोरालिटी पे आ गया। मोरालिटी मतलब सोसाइटी में वैल्यूज़ को लेके चालू हो गई। देन कैरेक्टर वेर एब्स्ट्रैक्ट वाइस वाइसेस एंड दी वर्चुसेस को लेके। सो दिस वर एलर्जिक, मतलब आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को थीम डालना है। थीम डालने के बाद आप रिलीजियस ड्रामा बना सकते हो, मोरालिटी प्ले करा सकते हो, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी में हर एक चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती थी। ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू विद दिस पैरा। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर मैंने एलिजाबेथ स्टार्ट किया, देन अगेन वी हैव टू गो थ्रू विद द ओके, चलो विल डू दिस वन पैरा मोर। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखेंगे एलिजाबेथन एंड द रिस्टोरेशन थिएटर को लेके। पहले हमने क्या देखा कि इंग्लिश थिएटर को देखा कि किस तरीके से उन्होंने पहले स्टार्ट की विद द सॉन्ग्स एंड ड्रामास, ये सारे चले गए। देन इट वाज स्टार्टेड इन द रोमन पे कि एक रिलीजियस बेसिस पे था, वो रिलीजियस बेसिस को हटा दिया गया, एक जनरल टॉपिक ली गई सोसाइटी में। देन वो ज़्यादा अच्छे से चला जो मोरालिटी के बेसिस पे थी। नाउ कम टू द एलिजाबेथन एंड द रिस्टोरेशन थिएटर। दिस सेक्युलर morality plays have direct link with the Elizabethan play। Elizabethan play बहुत ही एक famous play हुआ करता था। ठीक है, so the Renaissance imposed a lean tradition, classical in depth, with theme of education, general and moral problems, and secular politics. The play had nothing to do with religion. There were the example of both comedy and tragedy। यहाँ पे एलिजाबेथ में दोनों आया था, कॉमेडी और ट्रेजेडी। थॉमस काइट, क्रिस्टोफर मैरलोव एंड विलियम शेक्सपियर आर द प्राइम ड्रामेटिक ऑफ दिस एरा। So it was the kid who discover how easily blank versus mind be converted into useful theoretical medium, which the Shakespeare used brilliantly. In all this play, the tragedy developed in the hand of the kite and the marble. Comedy had also then proceeded beyond the rustic humor, but by the 90s of the 16th century, the theatre in England was fully established, but complicated condition governed the activities of the dramatist। ठीक है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंस जो चीज़ है is about the Shakespeare, एक minute, Christopher, this is the name of the Thomas Guide, right? Somebody asked me what is KYD. This is the name of the Thomas Guide, Christopher और विलियम शेक्सपियर एंड दे मार्लो, ये सारे यहाँ पे राइट करते हैं।
नाउ द स्टूडेंट्स वी आर ये इतना हमने किया है, बट हम एलिजाबेथन रिस्ट्रिक्शंस के थिएटर्स जो हैं हम बाद में हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. प्लीज़ रिमाइंड मी ऑफ दिस. ठीक है एवरीवन. ओके, होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया. Yes. यहाँ तक द फर्स्ट पैरा आपको समझ में आ गया. Yes, एलिजाबेथ ma'am. का डेफिनेटली मैं आपको Yes, एक्सप्लेन yes. करने वाली हूँ. ठीक है चलो ठीक है देन. एक मीनिंग किसी ने, एक मिनट लेट मी सी द क्वेश्चन. किसी ने एक मीनिंग पूछा है. वो व्हाट इज द क्वेश्चन? देयर आर मेनी क्वेश्चंस यू आर सेंडिंग बट मैं देख नहीं पाती हूँ. अच्छा एलो एलो ग्लोरीज को पूछा है. ये है एक स्टोरी या प्ले या पिक्चर जो कैरेक्टर को सिंबल में प्रेजेंट करते हैं. राइट. जैसे इस कैरेक्टर के आइडियाज़ या क्वालिटीज़ क्या है, क्या वो अच्छा है खराब है, ये है उसको एक सिम्बॉलिक मिलती है. तो डैट इज़ दी एलिरो ग्लोरीज होती है उस चीज़ की. ठीक है. सो दिस इज़ द क्वेश्चन वाज डन. ठीक है चलो देन नाउ एवरीवन बाय टेक केयर. Bye, ma'am. हाँ बाय बाय टेक केयर.